Obviously, for measurement, we have to use some instrument for length measurement, mass measurement, as well as time measurement. In other physical quantities, we have to use different instruments. So, in this measurements, so in the errors in measurement, we should know about some more terms. One is precise measurement and precise measurement, and another term which is used is that is material accurate measurement. So these are two terms used in the measurement of physical quantities. One is the precise measurement and second one is the accurate measurement. Actually, we have some real value of any parameters. Real value of any measurement. physical parameters. So we have any real value of any physical parameters which we have to measure by using any instrument. So by using that instrument, we can get either precise measurement, accurate measurement, or both. So first of all, we should know what is this precise measurement and what is that accurate measurement. Accurate measurement is those measurements. So write some lines for this accurate measurement. So first, accurate measurement is this is the measurement which is very near to real value. So when any measurement is very near to real value, then that is known as the accurate measurement. For example, the real value is let's say 3.652. This is that real value of any physical quantity, maybe length, mass, etc. And that measured value is about 3.6 or 3.5, like that. So this is near of that real value. So one can say this is actually the accurate measurement. If this is about 3.8 or 3.9, it's not accurate because it is far away from this value. So the accurate measurement is just near of that given value or that real value. जो एग्जैक्ट आना चाहिए उस वैल्यू के आसपास अगर पहुंचता है तो उसको रियल दैट एक्यूरेट मेजरमेंट कहा जाता है. And now the precise measurement. In the precise measurement, it depends on resolution or least count of instrument. Here we have 3 digits after this decimal point, but output is just with 1 digit after this decimal point. But this is near about the real value. That's why this is known as the accurate measurement. But the result should be like this. We must have 3 digits after this decimal point, and this depends on the resolving power of or the least count of that instrument. जैसे हमारे पास कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं. फॉर एग्जांपल वी हैव मीटर स्केल. Just generally we use meter scale. Second, we have that vernier calipers. Third, we have that spirometer. These are some non-physical instrument. Spirometer, screw gauge, screw gauge, and these are some measuring device to measure length.
to measure so this is meter scale, vernier calipers, spirometer and screw gauge. These are some measuring device to measure the length, and its resolving value are that least count. This is different from others. So first of all, we should know what is this least count or resolution of that instrument. Least count is actually least count. The minimum value which that instrument can measure. The minimum value that instrument can measure is known as least count. So कोई इंस्ट्रूमेंट जितना मिनिमम मेजर कर सकता है, that minimum measured value is known as the least count. Okay, so what is least count? Least count is this is the minimum value any instrument can measure. अब जैसे अगर पहले तो हम एक मीटर स्केल लेते हैं जो हम लोग जनरली अभी तक यूज करते आए हैं, उसमें मिनिमम हम कितना मेजर कर सकते हैं? सो दैट मीटर स्केल में हम लोग मेजर कर सकते हैं दैट इज अबाउट ओनली 0.1 सेंटीमीटर, और मिलीमीटर के टर्म में अगर को कहा जाए तो 1 मिलीमीटर. तो उसमें जो 1 सेंटीमीटर के बीच में 10 पार्ट्स रहते हैं, है ना. तो एक पार्ट्स की जो वैल्यू होता है, अगर कोई सेंटीमीटर स्केल अगर को लो तो यहाँ पर ये 1 सेंटीमीटर या 0 से अगर के लिए तो 0 से लेकर के 1 के बीच में हमारे पास 10 लाइंस होते हैं लाइक दिस. तो एक पार्ट का जो वैल्यू होता है, ये एक पार्ट की वैल्यू जो है 1 मिलीमीटर के बराबर है. In centimeter, if you want to write, then this is 0.1 centimeter. So this 0.1 centimeter is the least count of that meter scale. जो मीटर स्केल है उसका लीस्ट काउंट, उससे कम हम मेजर नहीं कर सकते. उससे कम अगर मेजर करने की कोशिश करेंगे तो दैट इज वन अप्रॉक्सीमेशन. अरे दोनों के बीच में आ रहा है तो बोले चलो 0.05 या हाफ मिलीमीटर ले लेते हैं अप्रॉक्सीमेशन. अगर एक्यूरेट मेजरमेंट की अगर कोई बात की जाए तो दैट विल बी 0.1 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर. So this is that least count. डिफरेंट क्लॉक्स के अपने डिफरेंट मिनिमम वैल्यू होता है. जनरली हम जो क्लॉक्स होते हैं इसमें हम 1 सेकंड तक मेजर कर सकते हैं. अगर कोई डिफरेंट ये दिखा जाए तो मिनिमम एक किसी क्लॉक का जो लिस्ट काउंट होता है वो 1 सेकंड होता है. सो नेक्स्ट वन इज सिमिलरली इन वर्नियर कैलिपर्स एक डिवाइस होता है जिससे हम लेंथ मेजर करते हैं, और इसका जो लिस्ट काउंट होता है दिस इज 0.01 सेंटीमीटर. मीन्स और थोड़ा अगर कोई एक्यूरेट में प्रिसाइज मेजर करना है. अब ये प्रिसाइज टर्म यहाँ पे आते जा रहे हैं. इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हम 0.1 सेंटीमीटर तक का ही प्रिसाइजली मेजर कर सकते हैं, उससे कम का नहीं कर सकते. जो मैंने इससे पहले 3.5 जस्ट आई हैव रिटन 3.5, ये 3.5 जो मैंने मेजर किया था दैट वाज बिकॉज ऑफ दिस मीटर स्केल. मैंने मीटर स्केल का यूज किया तो मेरे पास जो डाटा आ रहा है दैट इज ओनली 3.5. obviously okay, let's hear about that the real value, that's why it's accurate one can say. लेकिन प्रिसाइज नहीं हो सकता क्योंकि प्रिसाइजली मेरे पास क्या होना चाहिए था, वो वैल्यू आना चाहिए था 3.6 कितना लिखा था जो वाट 3.635. तो डाटा आ गया था दैट इज 3.5 ओनली. व्हाई? बिकॉज आई एम यूजिंग दिस मीटर स्केल. मैंने मीटर स्केल यूज किया इसलिए 3.5 आया. लेकिन उसकी जगह पर अगर मैं वर्नियर कैलिपर्स यूज करता तो एक डिजिट और मैं मेजर कर सकता था 0.01 सेंटीमीटर, क्योंकि इसका रेजोल्यूशन जो है या कहना चाहिए लिस्ट काउंट जो है वो 0.01 है. एक डिजिट एक्स्ट्रा मैं मेजर कर सकता हूँ आफ्टर दैट डेसिमल पॉइंट. सो दैट मेजरमेंट में भी 3.54 हो सकता था. 3.54 हो गया. मीन्स अभी इस डेसिमल के बाद में एक डेसिमल एक और मैंने मेजर कर लिया. नाउ in spirometer this least count is that least count it is equal to 0.001 centimeter. एक डिजिट और एक्स्ट्रा आगे बढ़ गया मैं डेसिमल से, मीन्स ये और ज़्यादा प्रिसाइज हो गया. so after decimal now I can measure 3 points, and as well as by using this a screw gauge I can measure this is 0.01 centimeter.
So because of that resolution of least count of instrument, I can measure so precise. इसको इसी टर्म को कहा जाता है प्रिसाइज, कि आप डेसिमल के बाद कितना ज़्यादा डिजिट तक आप मेजर कर सकते हो. वट एवर दैट वैल्यू इज कमिंग, दैट इज डिफरेंट. इफ यू आर गेटिंग दैट 3.759, ओके, दिस इज नॉट एक्यूरेट. ये एक्यूरेट नहीं है, बिकॉज 3.5 इज एक्यूरेट, दिस इज नियर अबाउट दिस, बट दिस इज प्रिसाइज. प्रिसाइज इसलिए क्योंकि वी आर मेजरिंग 3 decimal values after that decimal point. So that's why this is the precise one. So जो precise measurement होता है, that actually depends on the least count of instruments. जितना अच्छा least count होगा, आप precisely उतना बेहतरीन measure कर सकते हो. But accurate value जो होता है, वो near about that the real value जो आना चाहिए उसके आसपास अगर पहुंच रहा है तो उसको हम कहते हैं that is that accurate value. तो ये precise value और accurate value में difference आना चाहिए. आपको कोई डाटा दिया गया है, यू कैन डिटेक्ट. ठीक है, क्लियर है. तो ये डिपेंड करता है, ये लिस्ट काउंट क्या होता है ये भी तुम्हें पता होनी चाहिए, है ना. सो एक ख्याल से ऐसे प्रोसीड. ओके, ये वैल्यू भी पता होनी चाहिए. व्हाट इज द लिस्ट काउंट ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट्स. या कोई भी अगर आपको इंस्ट्रूमेंट दिया गया तो सबसे पहला हमारा काम होता है वी जस्ट ट्राई टू फाइंड व्हाट इज द लिस्ट काउंट ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट. मीन्स मैं उस इंस्ट्रूमेंट की कैपेबिलिटी चेक करता हूँ कि उसको वो कितना मेजर कर सकता है. ज़्यादा से ज़्यादा मैं चाहूँगा कि मेरे पास अच्छे इंस्ट्रूमेंट हो, हाँ, जिससे मैं ज़्यादा प्रिसाइज मेजर कर सकूँ. सो इफ एक्यूरेट और प्रिसाइज मेजरमेंट नहीं हो रहा है, मीन्स देयर विल बी सम एरर. एरर मीन्स अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट. Errors in instrument, this is actually the uncertainty in the measurement. So किसी measurement में अगर uncertainty है, sometimes positive, negative, different from the real value, if this is different from the real value, so measured value is if different from real value, then that is known as error in the measurement. तो उसको कहा जाता है that is known as error in the measurement. So what is the error? Error is just uncertainty in the measurement. By using an instrument, we are trying to find the accurate value, precise value. But if there is some uncertain measurement or it is different from the real value, then this is known as there is some error in the measurement. और ये error होता है, this is classified into two parts. One is the systematic error, and second one is random error. And one can give another type of error that is known as least count error. So first type of error is systematic error, second is the random error, and third one is least count error. So that systematic error is that error will be either positive or negative. So every time when we are frequently taking the measurement, every time that error is positive always. हमने कोई इंस्ट्रूमेंट लिया, उस इंस्ट्रूमेंट को हम यूज कर रहे हैं और हर बार अगर कोई पॉजिटिव ही आ रहा है या हर बार एरर जो है वो निगेटिव ही आ रहा है, दैट इज द फिक्स वन. पॉजिटिव आ रहा है या निगेटिव आ रहा है, भाई मुझे जो वैल्यू मेजर करना है, रियल वैल्यू मेजर करना चाहिए तो उससे ज़्यादा आ रहा है, या मुझे जो रियल वैल्यू मेजर करना है तो उससे हमेशा कम आ रहा है. तो आइदर दैट मेजरमेंट इज पॉजिटिव ऑलवेज और नेगेटिव, देन दिस इज नोन एज सिस्टमैटिक एरर. उसको सिस्टमैटिक एरर कहते हैं. लेकिन अगर यहाँ पर ये रैंडम है, कभी पॉजिटिव आ जाता है कभी नेगेटिव आ जाता है, फिक्स नहीं है. एक बार मैंने मेजर किया सेम बाय, अब आई एम यूजिंग द सेम इंस्ट्रूमेंट, एक बार मेजर कर रहा हूँ तो पॉजिटिव आ रहा है, नेक्स्ट टाइम जब मेजर कर रहा हूँ तो वो नेगेटिव आ रहा है. रैंडम है. सो दिस इज इफ दैट एरर इज रैंडमली positive or negative by in
same instrument, then this is known as random error. And if it is always positive or always negative, then this is systematic error. And if that error is because of least count of instrument, if that error is because of least count of instrument, then that error is known as least count error. जैसे जब स्क्रू गेज या वर्नियर कैलिपर्स तुम कभी यूज करोगे तो उसमें एक जीरो एरर कहा जाता है उसमें, दैट इज एट लीस्ट काउंट, उसमें एक यूज होता है जीरो एरर। जीरो एरर होता है कैसे, वो इससे लिस्ट काउंट एरर के अंतर्गत आता है। तो जब स्पेशली दैट प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट जब लेते हैं वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज, सो जीरो एरर इन वर्नियर कैलिपर्स। तो उसमें दो स्केल होते हैं, दोनों स्केल का जीरो जब मैच नहीं होता तो उसको जीरो एरर मानते हैं। तो तुम अपने बुक वगैरह में कहीं पे देखना, वर्नियर कैलिपर्स का एक बढ़िया डायग्राम होगा, है ना, उसमें दो स्केल होते हैं। एक स्केल को कहा जाता है दैट वन इज द मेन स्केल, सेकंड स्केल इज वर्नियर स्केल। दोनों का जीरो मैच होना चाहिए। अगर दोनों का जीरो अगर मैच नहीं हो रहा है तो उसको जीरो एरर कहते हैं। फिर उसको कैलकुलेशन किया जाता है टू, तो इसको इजीली एलिमिनेट किया जा सकता है, इजीली हटाया जा सकता है, इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, ये फिक्स होता है। एंड आल्सो दिस रैंडम एरर इज डेंजरस, इसको एवरेजिंग करके हटाया जाता है कि बार बार 5-6 बार ये कभी प्लस हो रहा है कभी माइनस हो रहा है, तो उसको टोटल एवरेजिंग किया और एवरेजिंग करके कैलकुलेट कर लेते हैं। और ये जो है सिस्टमैटिक एरर, ये फर्दर और क्लासीफाई होता है, डिपेंड करता है 3-4 पैरामीटर्स पे। अगर थोड़ी सी सावधानी बरता जाए तो इसको भी एलिमिनेट किया जा सकता है। सो दिस सिस्टमैटिक एरर इट इज बिकॉज ऑफ, it is further classified, one can say, into 3 parts. One is instrumental, so this is the instrumental error. Second, experimental technique error. So, and third one is personal error. जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है उसके थ्रू। ओके, सो पॉजिटिव यानी कि पॉजिटिव ऑलवेज पॉजिटिव हो गया, ऑलवेज नेगेटिव होगा, है ना, वो रैंडम नहीं होगा। और ये इन 3 कारणों से हो सकता है। पहला, या तो इंस्ट्रूमेंटल एरर है, योर इंस्ट्रूमेंट इज नॉट गुड इनफ, खराब हो गया तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट, मेजर करते करते अचानक पार्टिकुलर टाइम पे बंद हो जाता है, हर बार वहीं पे जाके बंद हो जाता है। तो इंस्ट्रूमेंट अगर कोई ख़राब है तो ये एरर हो सकता है। वो जनरली इन लेबोरेटरी एनालॉग टाइप जब इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते थे ना, मीटर वोल्ट मीटर में, उसमें एक ऐसा निडल्स होता है, मीटर वोल्ट मीटर में निडल्स वाले रहते हैं। वो निडल्स वाले में क्या रहता है कि कभी कभी मेजर करते करते निडल्स जाके अटक गया, है ना, तब उसको फिर क्या करते, बीच बीच में ठोक ठोक करके चलाते रहते हैं। पुराने स्कूल वगैरह मैंने देखा कहीं कई कॉलेज में, है ना, उसको अचानक ये किया, झटके के साथ पोटेंशियल वैल्यू दिया या वोल्टेज या करंट की वैल्यू दिया, हाँ, लेकिन जाने के बाद वो अटक गया, वो उस तरह से वेरिएशन नहीं हो रहा है। तो ये वो इंस्ट्रूमेंटल एरर के अंतर्गत आता है। इसको हटाने का तरीका होता है, आप तो नया मीटर वोल्ट मीटर यूज़ करो, हाँ, या फिर उसको बनवाओ, इसको ठोको, या उसको ठोक करके काम चलाओ। तो दैट इंस्ट्रूमेंटल एरर। सेकंड वन इज द एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। भाई तुमने टेक्निक ही गलत इस्तेमाल किया, टेक्निक इज नॉट गुड। मेजरिंग टेक्निक में ही अगर कोई एरर है, जाने जाने तुमको जो मेजरमेंट टेक्निक यूज करना चाहिए था तुम दूसरे टेक्निक से कर रहे हो, डाटा आ गया, सो दैट इज द टेक्निकल एरर। सो टेक्निकल इस एक्सपेरिमेंटल टेक्निक एरर को भी हटाया जा सकता है। आपको प्रिसाइजली कोई प्रॉपर एक अच्छा एक्सपेरिमेंटल टेक्निक यूज करना चाहिए जिसमें आपको एक्यूरेट, प्रिसाइज, तो प्रिसाइज मेजरमेंट तो डिपेंड करेगा आपके इंस्ट्रूमेंट के ऊपर। आप अगर कोई अच्छा इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं जिसका रिजॉल्विंग पावर अच्छा है, रिजॉल्विंग अच्छा है, लीस्ट काउंट अच्छा है, तो प्रिसाइज मेजरमेंट मिलेगा। लेकिन एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए तो आप जो एक्सपेरिमेंटल टेक्निक यूज़ कर रहे हो, वो एक्सपेरिमेंटल टेक्निक जो है वो प्रॉपर होना चाहिए, एक्यूरेट इनफ होनी चाहिए। थर्ड वन इज दिस पर्सनल एरर। अगर हम ऐसे ही कैजुअली अगर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं,
वी आर नॉट टेकिंग केयर अबाउट डू एंड डोंट्स ऑफ दैट एक्सपेरिमेंट. हर एक्सपेरिमेंट के पीछे में दिया रहता है तुमको उस एक्सपेरिमेंट के साथ क्या नहीं करना है, द प्रिकॉशंस ऑफ दोज एक्सपेरिमेंट्स. उसमें एक चीज़ रहता है, उसमें एक लाइन पे लिखा रहता है एक्सपेरिमेंटल बुक्स में कि हमें एक्सपेरिमेंट हमें मेजरमेंट जो है वो केयरफुली लेना चाहिए, ऑब्जर्वेशन केयरफुली लेना चाहिए, रैंडमली ऐसा नहीं. कई बार ये होता है कि हम स्केल जैसे मेजर लेना हो तो स्केल को हमको इस तरह से डायरेक्ट ऐसा देखना चाहिए, नॉर्मल टू आई. यहाँ पे स्केल रख करके देख रहा है, ऑब्वियसली इरर तो होगा, दैट पैरालैक्स टाइप इरर. हर बार कहा जाता है जब कभी भी रीडिंग लिया जाता है तो दैट रीडिंग मस्ट बी नॉर्मल टू अवर आई, एकदम सीधा सीधा देखना चाहिए. तो ये पर्सनल इरर के अंतर्गत आता है. केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, सब जगह पर्सनल इरर, हाँ, ये असावधानी की वजह से होता है. हमने रैंडम लिया, कैजुअल लिया उस एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना, ओके करना है, ये पर्सनल इरर होता है. इसको बचाया जा सकता है, बस ये कि आपको उस एक्सपेरिमेंट पे सीरियस होना है. हाँ, जितने भी तुमको जो भी अगर कोई वायर वाला अगर कोई एक्सपेरिमेंट है तो सारे वायर को एकदम प्रॉपरली एकदम टाइट करके कनेक्ट करके रखना है. डिवाइस में मेजर करते समय एकदम बिल्कुल नॉर्मली देखना है. तो ये पर्सनल इरर को भी अवॉइड किया जा सकता है. सो इतने सारे इरर्स हो सकते हैं, है ना, और ये या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, क्योंकि एक बार अगर जो पर्सनल इरर तुम कर रहे हो हर बार वही चीज़ तुम दोहराओगे, हाँ, तो ऑब्वियसली इरर जो है वो सिस्टमेटिक इरर होगा, तुम जानबूझ के बदमाशी कर रहे हो. सो दीज आर डिफरेंट इरर्स. एंड नाउ ये इरर्स जो है वो इरर्स को भी मेजर किया जाता है. सो हाउ टू मेजर दीज इरर्स? सो इरर मेजरमेंट. आपने कितना उस मेजरमेंट में इरर किया है, दिस कैन बी मेजर्ड. एंड these are known as, one is known as absolute error, relative error, and third one is percentage error. So for the error measurement we want to check कि हमने कितना उस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में इरर किया है. एंड दैट कैन बी मेजर्ड in terms of absolute errors, or in terms of relative errors, or in terms of that percentage error. So now let us see how we calculate this absolute error. So how we calculate this absolute error? Let we take the measurement of any physical quantity n times. Physical quantities को n times measure किया by using same instrument. So we are checking the measurement of any physical quantity n times by using the same instrument. And the measured values which are A1, A2, A3 and up to N. So we are using the same instrument and taking n times measurement, and then we just find the average of these values obtained. So the average value that will be equal to A1 plus A2 plus A3 plus A4 and so on n. सारे डाटा को हमने जोड़ दिया और जोड़ करके उसको n से डिवाइड कर दिया. It is divided by n. तो अगर 5 मेजरमेंट है तो 5 मेजरमेंट को ऐड करके उसमें हमने 5 से डिवाइड कर दिया. सो दिस इज जस्ट द एवरेज वैल्यू. एंड दिस इज आल्सो रिटन एज in terms of summation of ai
where I is 1 to n by n. So this can be also written as like this. So here ये सारे टर्म्स जो हैं इन सारे टर्म्स में a1 a2 a3 ऐसे है. So this is written as ai. यहाँ पर i टर्म है. I की वैल्यू यहाँ पे मैंने अरेंज किया है. This I is from I is equal to 1 to n. 1 2 3 4 n तक है. तो ये जो सबस्क्रिप्ट्स में है उस सबस्क्रिप्ट्स वैल्यू को यहाँ पर रेंज के टर्म में दिया जाता है. सो I is equal to 1 to n ai by n. n चूँकि टोटल नंबर्स हैं उस n को डिवाइड कर दी. सो दिस इज दैट एवरेज वैल्यू एंड द एरर इज द एब्सोल्यूट एरर इंडिविजुअली कैलकुलेट किया जाता है. if the error is denoted by delta a I. अगर हम इंडिविजुअल एरर को अगर कोई डेल्टा ए आई से डिनोट कर रहे हैं, अब इंडिविजुअल a1 a2 a3 ऐसा करते चले जाएंगे, देन व्हाट वी विल हैव दिस delta a1. So first error, this delta a1 is equal to a1 minus a mean. वो जो वैल्यू हमने लाया था, this is actually a mean. So the mean value is represented by a mean, that is equivalent to summation of this. This is written. This is just a summation. इस टर्म को पढ़ा जाता है. This is summation of a from I to n, 1 to n. So a mean is equivalent to this. So this delta a1, it is equivalent to a1 minus a mean. A2 will be delta a2, that is equivalent to a2 minus a mean. Delta a3, that is equivalent to a3 minus a mean. Delta a4, this is equivalent to a4 minus a mean. And similarly, that delta an is equivalent to an minus a. So we can calculate individual error or average measurement by this. तो फर्स्ट क्या किए, जब हमने n मेजरमेंट लिया, सारे n मेजरमेंट का हमने एवरेज निकाला. एवरेज निकालने के लिए सारे मेजरमेंट को हम जोड़ करके जितने टाइम्स हमने मेजरमेंट लिया उसको डिवाइड कर दिया, वो एवरेज हो गया. एवरेज होने के बाद फिर इंडिविजुअल पैरामीट्रिक मेजरमेंट हमने कैलकुलेट किया. फर्स्ट मेजरमेंट A1 में कितना एरर था, A2 में कितना एरर था, सब में इंडिविजुअल. उसके बाद फिर सारे जो एरर्स हैं उस एरर का भी एवरेज हम कर सकते हैं. सो दैट एब्सोल्यूट एरर इज एब्सोल्यूट एरर, ये इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर हो गया है ना. एब्सोल्यूट एरर मीन that is equivalent to delta a mean. इसका भी एवरेज निकाल लें. So that is equivalent to delta a1 plus delta a2 plus delta a3 plus delta a4 and so on delta an by n. तो पहले पैरामीटर को ऐड किए, एवरेज निकाले, फिर इंडिविजुअल एरर निकाले, या एब्सोल्यूट एरर हो गया इंडिविजुअली. उसके बाद सारे एरर को हमने सम कर ये एवरेज कर दिया. सो द एवरेज a mean is equal to this. And also we can write this in terms of summation. So the summation of this delta ai from I is equal to 1 to n by n. So जो एग्जैक्ट जो वैल्यू होता है जो फिजिकल पैरामीटर का, वो फिर एक रेंज पे आता है. So that real value will be in the range of the real value will be in the range of that a mean, the average value measured, minus this error, it is less than to a or it is greater than to a mean प्लस डेल्टा ए. क्या है, जो हमारे पास एवरेज वैल्यू आया उस एवरेज वैल्यू में एरर के एवरेज को हम माइनस करें तो ये मिनिमम वैल्यू होगा उसका,
और उसमें अगर हम प्लस कर दें उस एरर को तो वो हमारा जो है वो प्लस वैल्यू होगा। तो एक रेंज हम बता सकते हैं कि जो हमारे पास जो रियल क्वांटिटी है वो रियल क्वांटिटी इस रेंज के बीच में होगा। एक छोटा सा नंबरिकल करेंगे तो ये समझ में आ जाएगा, है ना, कैसे कैसे उसको कैलकुलेट करना है। तो इसका स्टेपिंग क्या हुआ, फर्स्ट वी जस्ट टेक द एवरेज निकालने के बाद इंडिविजुअल पैरामीटर्स को हमने एरर्स कैलकुलेट किया, एब्सोल्यूट एरर, उसके बाद सारे एरर को हमने ऐड करके उसका मीन कैलकुलेट कर दिया। तो मीन एरर वी कैन कैलकुलेट। तो किस रेंज पे वो वैल्यू होगा, तो ये जो इस एरर को, ये मीन जो एरर है उसको उस मीन के साथ माइनस करोगे, दिस इज द मिनिमम वैल्यू, और इसको अगर इसके साथ प्लस करोगे तो दैट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू। ये तुम्हारा एब्सोल्यूट एरर के अंतर्गत आता है। चलिए जल्दी जल्दी दो और बता देता हूँ। हो गया। नाउ द रिलेटिव एरर एंड द परसेंटेज एरर। Second is relative error, and this is equal to absolute error. So this relative error is mean absolute error upon mean value. Whatever that mean value. So this is delta A mean by date, that is A mean. तो सबका एवरेज एरर निकाले और एवरेज एरर निकाल करके उसमें जो एवरेज वैल्यू से डिवाइड कर दिए तो वो हो गया आपका रिलेटिव एरर। एंड द परसेंटेज एरर इज, थर्ड इज परसेंटेज एरर। This is equivalent to mean absolute error by mean value multiplied by 100। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो परसेंटेज में आ जाता है। और दिस इज ए डेल्टा ए मीन बाई ए मीन मल्टीप्लाई बाई। तो एरर का मेजरमेंट में ये इतने 3 प्रकार का मेजरमेंट टेक्निक होता है। हम एरर को मेजर कर सकते हैं, कितना एरर हुआ हमने, हमारे पास डिफरेंट एरर के सोर्सेज थे। पर्सनल एरर हो सकता है, इंस्ट्रूमेंटल एरर हो सकता है, दैट एक्सपोनेंट टेक्निक एरर हो सकता है, रैंडम आर इवन दैट लीस्ट काउंटर टाइप एरर हो सकता है। लेकिन मैक्सिमम कितना एरर हो सकता है, एब्सोल्यूट एरर हम निकाल सकते हैं। इवन दैट वी कैन कैलकुलेट दैट रिलेटिव एरर और इन दिस दैट परसेंटेज एरर, जिसमें इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है ना, तो परसेंटेज एरर आएगा। जनरली इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक वी प्रेफर दिस परसेंटेज एरर। तो उसमें एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के साथ कितना ही है।